writings. Uh, okay. So tomorrow is my exam, and I don't care because a single piece of paper cannot decide my future. So is it so that we actually don't care? We do. Everyone does. Because as human being, whatever thing we put in our effort, we do care for the results. And so does in this case. We do care for the results of the exam. Now, with this, I, Mansh Verma, feel fortunate enough to be here and share my views on the topic, should exams be bad? So, respected sir, madam, and all my dear batchmates, I would like to draw your attention towards some facts which I have written over here. This 1,70,924 is the number of death that has been caused during a single financial year in 2020-21 due to suicides. Now, can you guess how many would have been out of pressure of exam or the results of exam? That is 13,000, which goes to 35 suicides per day. Huge number, right? More than one suicide every year. Just out of the fear of exam or the results, the failures of exam. Now, before going forward, we must know what is examination. So, examination is basically a tool or a test which we undergo to check our knowledge through oral or written medium. Now, as we always try to find that who was the first one who invented something when we go through a new topic. So, in case of examination, it was Mr. Henry Fisher who invented exam in 19th century in a formal manner for his scholars. Now, there are always two sides to a particular thing. In examinations case, when we prepare for exam, there can be two results, as you all must be aware of them. The first one could be either we pass or get success, and the second one could be fail. Okay, so we always talk about the ones who succeed or who get success, but we never talk about the ones who get failed. Many of us failed in our first or second attempt to reach here, but somehow we reached here, and now we are all fortunate enough to be here and have all this privilege. But what about those who failed? Now, moving forward, I would like to share the data that this is a particular state where 1800 deaths were caused due to suicide out of examination situation. So, can you please imagine what could be? Can you please guess which state this could be? The one with highest. Madhya Pradesh. Indeed, Madhya Pradesh is there in the list, but it is a second point. Maharashtra. Yes, Maharashtra is the state with highest number of suicide due to examination situation. Now, what could be the possible reasons for suicides out of examination situation? Yes, exactly. Peer pressure. Parents' expectation. Exactly. From the very early age, we have been told, like बेटा अगर 100 में से 90 नंबर लेके आओगे तो तुमको वीडियो गेम दिलाएंगे. अगर 80 नंबर लेके आओगे तो साइकिल दिलाएंगे. 70 नंबर लेके आओगे आइसक्रीम तो भी कुछ इससे कम वाला दिला देंगे, और अगर 50 लेके आए तो बेटा अगले साल से कोचिंग के टाइम बढ़ जाएंगे तुम्हारे. दिस इज वेरी मच कॉमन इन एवरी इंडियन हाउस होल्ड दैट हमारा इवेल्युएशन जो होता है पढ़ाई का, हमारे नॉलेज का, वो किया जाता है हमारे नंबर से, दैट हाउ मेनी मार्क्स वी आर गेटिंग. बट दिस इज नॉट द केस इन प्रेजेंट सिनेरियो. अब चीजें बदल रही है धीरे धीरे. नाउ वी आर फोकस्ड मोर, द पेरेंट्स आर नॉलेजेबल इनफ to evaluate their children not only on the basis of marks but on the basis of knowledge and the skills they are acquiring. Then the other reason for the suicides or for the adverse action that these children take is isolation and loneliness. We feel insecure to share our vulnerable sides. जैसे बोस्टो ने बोला था कि हमारी वीकनेस रही थी, हम लोग इंग्लिश में कमजोर थे या फिर हम क्वांट्स में कमजोर थे, पर वी जनरली डोंट टॉक कि हमारी ये कमजोरी है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते. हम ये डर में रहते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा. वी आर ऑलवेज इन फियर ऑफ जजमेंट्स कि हाउ वुड दे लुक अप टू अस. देन देयर आर फाइनेंशियल कंसर्न्स आल्सो. भाई
जो सुसाइड होती है इसके अंदर ये भी होता है ना, जैसे बहुत सारी वेब सीरीज देखते हैं, बहुत सारी रियल लाइफ स्टोरीज सुनते हैं, जैसे यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द मूवी कॉल्ड 12th फेल। उनकी कितनी दुखद कहानी थी, कहाँ से किस बैकग्राउंड से आए थे, और सबसे बड़ा जो वो एक सीन था जिसमें उनकी दादी उनको अपने पूरे इकट्ठा करा हुआ पैसा देती है और वो चोरी हो जाता है। अब उसके बाद में उस इंसान के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वो वापस पीछे जाए और वही लाइफ में रहे। सो ओनली ऑप्शन दैट ही हैज वाज टू मूव फर्दर, टू मूव अहेड, और वही हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन बनता है। बट इट इज नॉट द केस विद एवरीवन। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग हार जाते हैं, और जो हार जाते हैं वो नंबर्स में आ जाते हैं। नाउ सो व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस दैट वी आर टेकिंग एज अ नेशन और एज अ इंडिविजुअल? तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया है जो कि 2017 में लाया गया था, जिसके तहत जो भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको अगर लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, वहाँ जाकर रजिस्टर कर सकता है। उसकी टेक केयर करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको रेगुलर इंटरवल पे उससे पूछा जाएगा, उससे बात की जाएगी कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम क्या इंप्रूवमेंट अपने अंदर देख रहे हो, ताकि वो ऐसा कोई एडवर्स कदम ना उठाए जिससे कि उसके परिवार वाले भी दिक्कत में आ जाए। बिकॉज जाने वाला तो चला जाता है, लेकिन जो रह जाते हैं उनकी दिक्कत हो जाती है। नाउ देयर इज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड किरण which is 24/7 available help desk where we can share our issues, और यहाँ पर सारा anonymously हम लोग शेयर कर सकते हैं। तुम्हारा कोई आइडेंटिटी उनको नहीं चाहिए होता है। सो isn't it good कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। There are some organizations named Sneha which is operated through Chennai. They also do the same social work of motivating people to not take such adverse action out of failure of exams. Then Tamil Nadu was the first state जिसने सप्लीमेंट्री एग्जाम के कॉन्सेप्ट को लेके आए थे। जनरली जो हिंदी भाषा में पूरक कहा जाता है कि भाई अगर आप 12th या 10th के एग्जाम में एक बार फेल होते हैं तो यू गेट अ चांस कि आप एक बार फिर से एग्जाम दें, उसको पास करके निकल जाए, क्योंकि एक सब्जेक्ट की वजह से ऐसा ना हो कि आपका वो पूरा साल बर्बाद हो जाए। और सेम मेथोडोलॉजी पे गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने भी यही किया था। उन्होंने जो सरकार है यहाँ की, उन्होंने लाया था कि रुक जाना नहीं करके स्कीम लेके आए, जिसके तहत अगर आपका एक या दो विषय में आप रह जाते हैं 10th या 12th में, तो यू गेट अ चांस टू क्लियर इट इन सेकंड अटेम्प्ट। नाउ अगर एग्जाम्स की बात करें तो ये तो हो गया एग्जाम का ड्रॉबैक कि अगर आप फेल हो जाते हैं, एग्जाम में सक्सीड नहीं हो पाते, तो ये सब चीजें होती है। नाउ एग्जाम के कुछ पॉजिटिव्स हैं जो कि हमको नजरअंदाज नहीं कर जा सकते। सो एग्जाम लीड्स टू रेगुलर लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। अगर एग्जाम्स नहीं होंगे तो हम बहुत डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, हम लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे आप सब लोग और मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, तो हम एग्जाम निकाल के आए तब यहाँ खड़े, वरना तो हर कोई कैसे भी बैंक में आ सकता था। सो एग्जाम टेस्ट अवर कैपेबिलिटीज कि हम कैसे प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। देन एग्जाम बिल्ड्स डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस। एग्जाम का कोई भी हमारा कोई अगर एग्जाम टारगेट करते हैं हम, तो उसके लिए सर्टेन सिलेबस होता है, सर्टेन कन्फाइंड मैनर में हमको उसकी तैयारी करनी पड़ती है। सो विद दैट बिल्ड्स अप अ डिसिप्लिन कि हमको एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव करना पड़ेगा, पर्टिकुलर मैनर में तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके हम उस एग्जाम में सक्सीड हो पाएंगे। देन द एग्जाम आल्सो क्रिएट्स सेल्फ अवेयरनेस एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट। ऑब्वियसली हम लोग आज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं 3 साल पहले तक सिर्फ अपने पोल्ट्री फार्म पे मुर्गे उठा रहा था, दैट इज ब्रॉयलर फार्म पे मुर्गे भर के गाड़ी में रिटेल शॉप में सेल कर रहा था। बट नाउ जब मैंने मेहनत किया, एग्जाम के लिए तैयारी किया है, नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर एंड एबल टू डिलीवर माय ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। So for me it is a sense of achievement, it is a sense of pride for me to be here. Then there is other aspect too of exam, that कोई भी एग्जाम रियल वर्ल्ड में कैसे सिचुएशन होता है उसको डिपेक्ट नहीं कर सकता। और इसी जो आइडियोलॉजी है, इसी को बेक करते हैं बहुत से ऐसे दुनिया के बड़े लोग जैसे एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग। इनका कहना है कि ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन का जो फॉर्मेट है, दे डोंट बिलीव इन इट। व्हाट दे बिलीव इज स्किल्स, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। But there is a philosophy on other hand which says कि knowledge checked through exam leads to wisdom, and I do believe in it कि जब तक आपके knowledge को आप check नहीं करेंगे exams के through, उन real life situations के through, you won't get that wisdom. And wisdom, what I feel, is the ultimate goal in a particular life, which leads you to a prosperous life. Now, to end up with, all I would like to conclude with is, exams can't be straight away banned. Exam can't be banned because they do have positives, but we can look after them with another approach by taking care of the ones who are lagging behind. And the life is not just a race or a competition, it is a journey. And believe me,
everyone has his own journey, their own ways. So exams will come, exams will go, but life goes on forever. So let us come together and fulfill the sole purpose of our life, that is to Wow. be happy and spread happiness. Thank you.